سب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ میں روایتی قومی دعائیہ ناشتے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ناشتے پر امریکی صدر ٹرمپ نے خطاب کیا، مذہبی رواداری بڑھانے کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ میں ابھی وزیر خارجہ نہیں، میری تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کی بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ۔ دونوں ممالک نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد گروپس کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے منشور قراردادوں کے تحت پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ دونوں ممالک نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات خارجہ پالیسی کی ترجیح قرار۔ پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا تمام فریقوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ صدر آصف زرداری کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ کے مطابق چین نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے منشور قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کے تحت پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا تمام تصفیہ طلب تنازعات کا حل اور کسی بھی یک طرفہ کارروائی کی مخالفت کی جائے گی۔ پاکستان اور چین کا ریلوے منصوبے ML1 پر مرحلہ وار اور محفوظ طریقے سے کام آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ریل کوٹ سے تھاکوٹ تک شاہراہ قراقرم منصوبہ زمینی رابطے کے لیے اہم، تجارت اور رابطوں کے لیے گوادر بندرگاہ سے زیادہ استفادے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ۔ پاکستان نے ملک میں چینی باشندوں اور پروجیکٹس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اور حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ دونوں ملکوں نے عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ بننے والے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے واضح اور ٹھوس اقدامات کرے۔ دونوں ملکوں نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا، جس میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حق بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور کے ڈپٹی کمشنر آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق لاہور میں فروری میں بین الاقوامی نوعیت کے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ کرکٹ سیریز، پارلیمانی سپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے، ہارس اینڈ کیٹل شو، فیض امن میلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب حکومت نے امن و امان کے لیے آرمی اور رینجرز پہلے سے ہی طلب کر رکھی ہے۔ مینار پاکستان تاریخی مقام ہے، جلسہ خوبصورتی کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو گزشتہ سال 21 ستمبر کو لاہور رنگ روڈ پر جلسے کی اجازت دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے NOC کی شدید مخالفت کی تھی اور خلاف ورزی بھی کی تھی۔ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کے بعد پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی، پورے پنجاب کو جلسہ گاہ میں بدلنے کا اعلان۔ شمالی پنجاب کے 10 اضلاع کے کارکنان ثوابی جلسے میں شرکت کریں گے۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے جلسے سے خوفزدہ ہے۔ آج 9 دن گزارنے کے بعد بھی عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی، اس لیے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق پی ٹی آئی پنجاب میں اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر رہی ہے۔ شمالی پنجاب کے 10 اضلاع بڑی تعداد میں ثوابی جلسے میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے باقی تمام ریجن وسطی، مغربی اور جنوبی صوبائی سطح پر پرامن احتجاج کا اہتمام کریں گے۔ فیشسٹ رجیم نے اپنے خوف کی بدولت ایک جلسہ روک کر پورے پنجاب کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ وسطی، مغربی اور جنوبی پنجاب کے کارکنان اپنے حلقوں میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 8 فروری انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا۔ کمیشن خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق بد انتظامی کی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن تحقیقات کرے گا کہ آیا نگران حکومت نے عام انتخابات کے بعد اقتدار کی منتقلی تک قانونی طور پر کام کیا۔ کمیشن خیبر پختونخوا میں نگران حکومت کی طرف سے جاری تمام احکامات کا تجزیہ کرے گا۔ کمیشن تعین کرے گا کہ دفعہ 144 کا نفاذ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق آئینی تحفظات کے مطابق تھا۔ کمیشن تحقیق کرے گا کہ 3 MPO کے تحت نظر بندی اور گرفتاریاں کیا قانونی تھیں۔ کمیشن جائزہ لے گا حراست میں لیے گئے افراد کو اپنی حراست چیلنج کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ کمیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے سیاسی کارکنان کی گرفتاری کے طریقوں کی تحقیقات کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں۔ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ 8 فروری کے دن ہی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت جبر اور قانون توڑ کر آگے بڑھتی رہی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت اور آئین کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
PTI ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत को इख्तिदार के जाने का डर है। बानी PTI झुककर चलने के आदी नहीं हैं। हम मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। जो फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, तो लाखों लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं। कोई मसला हुआ, जमहूरियत को कोई खतरा हुआ? फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अवाम के बहाव के सामने या अवाम के सेंटिमेंट्स के सामने ना इस्टेब्लिशमेंट रुक सकेगी, ना आपकी ये फॉर्म 47 की हुकूमत। इमरान खान साहब नीचे होके किसी के सामने चलने का आदी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, अचकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, हम लोग सारों को आउटरीच कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। PTI के साथ इनकी लंबी रिफाकत नहीं चलेगी। PTI इसे सबक नहीं ले रही है। ये रवैया ना नवाज शरीफ ने अपनाया, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। ना नवाज शरीफ ने अपने दरवाजे बंद किए, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। इन्होंने तमाम तर लाइनें क्रॉस कर ली हैं। इस वजह से दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। PTI उससे गुजरने के यहाँ जो सबक नहीं ले रही कि माजी में वो फेज किस तरह गुजारा गया था। कि मौलाना जो हैं वो बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। लंबी रिफाकत नहीं चलेगी उनकी। अली अमीन और मैं एक पेज पर हों या ना हों, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात चाहते हों। PTI रहनुमा जुनेद अकबर कहते हैं कि बानी PTI फैसला मुलाकात करने या ना करने से नहीं करते। लोग मेरे लिए नहीं, बानी PTI के लिए जलसे में आएंगे। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास के एलामिये में कहा गया कि जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। एडिशनल जजेस के लिए खालिद इसहाक, चौधरी सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नामों की मंजूरी दी गई। एडिशनल जजेस के लिए सरदार अकबर अली डोगर, उवैस खालिद, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी दी गई। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, एहसन रजा काजमी और मलिक वक़ार हैदर अवान के नामों की भी मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। गैर सरकारी तंजीम पत्तन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। पत्तन ने वोटर्स के खिलाफ जंग के उन्वान से रिपोर्ट का पहला हिस्सा जारी कर दिया। रिपोर्ट में अवामी मैंडेट की चोरी से मुतालिक तज्जिया और वजाहत की गई है। पत्तन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 में धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में आमरीत मजीद जोर पकड़ रही है। आम इंतखाबात में बेमिसाली धांधली के बाद आइन के ढांचे और रुख को मस्ख करने के इक़दामात हुए। बानी PTI ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत नहीं लिखा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी के कैद तन्हाई में रखने के दावे को बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा है कि बानी चेयरमैन PTI ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत तहरीर नहीं किया। जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच पड़ताल सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। खाना बदोश सारी जिंदगी इधर से उधर जिंदगी गुजार देते हैं, घर बनाते हैं ना अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कल की मंसूबाबंदी करते हैं। नस्ल दर नस्ल ये लोग अपनी जिंदगियां झोंपड़ियों में गुजारते चले आ रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिद राव की ये रिपोर्ट। अपने कल की फिक्र से आजाद ये है खाना बदोश। मुस्तकिल छत में यसर है ना जरिए मौश। चलते फिरते आज यहाँ तो कल वहाँ, प्लास्टिक शीट और काने लगाए और रात गुजार दी। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में खाना बदोशों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी सख्त जान होते हैं। सुबह खा लें तो शाम की फिक्र नहीं। महंगाई के इन हालात में भी खाना बदोशों का
का कहना है कि बस वक्त गुजर रहा है। ये बताएं तो बहुत मुश्किल है, जैसे हालात हैं काम के हम गरीब नहीं कर पा रहे, बकाया गुजारा चल रहा है, जो टाइम का शुक्र है अल्लाह का अच्छा चल रहा है। हाँ सर्दी लग रही है, हमारे पास कंबल ही नहीं है ज्यादा। माँ मुश्किल है, पूरी रात आग जला के बैठ रहा है, निकल जाए बच्चा है पूरी रात पेट के पागल होनी है, बीमार नाल है, नजला है, बुखार है, आप अम्मी उदी बीमार है पई, अब उन्हें दिमाग का ऑपरेशन हो सी। दुनिया भर में मुतहरिक होने की वजह से खाना बदोश कई ज़बानें बोलते हैं और इन लोगों के ताल्लुकात भी महदूद होते हैं। खाना बदोश वो लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी दरबदरी में गुजार देते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद सफर दर सफर है, जो एक चलती फिरती जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन ने मुतालिक अहम इजलास में पंजाब में एक रोज़ा VC कॉन्फ्रेंस टेक एक्सपो की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए होनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी दे दी। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती गज़ा में जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए गज़ा के अवाम की जबरी बेदखली नाइंसाफ़ी और बाइसे तशवीश है। फ़लस्तीनी सरज़मीन सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की है। जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान का मुतालबा है कि 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। पाकिस्तान अल-कुद्स अल-शरीफ को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत समझता है और बनाने का मुतालबा करता है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और गैर कानूनी बस्तियाँ आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। गैर कानूनी बस्तियों की तामीर पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि तमाम बेदखल फ़लस्तीनियों को उनके घरों में वापस जाने दिया जाए। इसराइली अफवाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से फौरी इनखला करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत के बाद ICC की तहकीकात में शामिल अमले, इनके अहल खाना पर पाबंदियां आयद होंगी। अमरीकी सदर ने NGOs को फंडिंग के जायजे के एग्जीक्यूटिव मेमो पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क का सुनहरी दौर शुरू हो गया है। पहली तरजीह अमरीका है। मुल्क को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। दुनिया के सामने मजीद मजबूती के साथ खड़े होना होगा। सऊदी अरब अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी सरमायाकारी $1 ट्रिलियन करने का इम्कान है, इस पर गौर करेंगे।